A healthy crop requires a regular supply of water. In India, rainfall is the major source of water for crops. But when there is no rainfall or it is irregular, other sources of water have to be used. Irrigation is the system of supplying water to crops when they need it. सबसे मुख्य स्रोत पानी का कृषि में सिंचाई के लिए ये है रेनफॉल यानी वर्षा। वर्षा जब ना हो तब नदियाँ, तालाब, बांध से रुका हुआ पानी, कुएं, नहरें, ट्यूबवेल, ये सब इरिगेशन है। क्या सिंचाई? सिंचाई है पानी क्रॉप में, फसल में देने का एक सिस्टम। Here are some irrigation systems. Learn how each one works by tapping on the images. अलग अलग सिंचाई के तरीके। सबसे पहले देखेंगे रहट सिस्टम। This ancient system of irrigation consists of a chain of buckets attached to a wheel with a lever to rotate it. As the wheel rotates, the buckets scoop up water from the well below and empty the water into a channel. Animals like oxen are used to apply the force needed to operate the lever. यहाँ देख सकते हैं एक बड़े से चक्र पे, बड़े से व्हील पे बहुत सारी बाल्टियाँ बंधी हुई हैं। जब वो नीचे जाती हैं और जब वो ऊपर आती हैं, ऊपर आते हुए पानी से भर के आती हैं और यहाँ पे आके पानी उनका खाली होता है और वो पानी नहर से, रास्ते से, एक तरह से नालियों से कह सकते हो, और कहाँ पहुँचता है? फसल तक। इस बड़े से चक्र को घुमाने के लिए लीवर का यूज़ होता है और लीवर को घुमाने के लिए बैल। The moat system of irrigation is a simple system that involves pulling water up from a well or from a pit or moat using a pulley. This system is inefficient and very time consuming. अब खुद कुएं से पानी निकालकर और पूरे खेत में पानी देना बहुत ज़्यादा समय का और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। The Dekhli uses a simple lever with a weight to pull out water from sources such as a well. It takes a lot of manual effort and is also inefficient. फोटो से देख सकते हैं ये व्यक्ति इसको नीचे खींचेगा, उस समय इसमें पानी भर जाएगा, फिर इधर लगे वेट की वजह से ये वापस ऊपर उठेगा और पानी इस नाली से बहते हुए फसल तक पहुंचेगा। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत, बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता। The chain pump has an endless chain running over a moving drum or wheel. The chain has discs or buckets at regular intervals to carry the water, with a tube at the top that allows these discs or buckets to pass through it. When the drum or wheel is moved, the ascending part passes through the tube at the top and carries the water to the point of discharge. ऊपर लगे हैंडल से ऊपर वाला व्हील घुमाया जाएगा तो उसके साथ लगी हुई ये चेन से जो पूरी चेन है वो घूमेगी और जो ये लकड़ी के गोल गोल फट्टे हैं ये पानी को रोक के और ऊपर की तरफ लेके आएंगे और इसी से वो पानी फसल तक पहुंचेगा। A modern system of irrigation, a sprinkler, has rotating nozzles that are attached to a main pipeline. When water under pressure flows through the pipe, it escapes from the rotating nozzles and irrigates the area around. It is very useful for irrigating uneven surfaces. ज़्यादातर आपने यही सिस्टम खेतों में पानी देने के लिए देखा होगा, फव्वारे लगा के पानी देना। इसमें ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो, समान ना हो, एक जैसी उसकी स्तर ना हो, तब भी ये सिस्टम बहुत अच्छे से पानी दे सकता है। The drip system is a modern irrigation method that uses pumps, valves and pipes to deliver water either right to the roots of the plants or to the soil surface near the roots. The water drips slowly, ensuring minimum wastage. पंप, वाल्व, पाइप, इन सब की मदद से ड्रिपर बिल्कुल पौधों की जड़ में
या पौधों की जड़ के बिल्कुल पास मिट्टी में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देता है। इसमें पानी की सबसे कम वेस्टेज होती है। Now summarize what we've learned in this topic. Irrigation, सिंचाई. In order to ensure the germination of seeds and to maintain the moisture of the soil for crop growth, fields need to be watered regularly. ये पक्का करने के लिए कि सभी बीज जर्मिनेट हो पाए और ठीक से उनमें ग्रोथ हो, वृद्धि हो। इसके लिए मिट्टी में आर्द्रता, मॉइस्चर सही से बनाए रखनी पड़ती है। इसलिए खेतों में बार बार पानी दिया जाता है। डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स इंश्योर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। अलग अलग तरह के सिंचाई के सिस्टम ये इंश्योर करते हैं जिससे पानी की सप्लाई फसल के पौधों तक लगातार पहुंचती रहे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन इंक्लूड द रहट सिस्टम, माउथ सिस्टम, धेकली सिस्टम एंड द चेन पंप सिस्टम। पुराने समय से, प्राचीन समय से सिंचाई के लिए जो सिस्टम यूज़ होते हैं उनमें से कौन कौन से हैं? रहट तंत्र, माउथ तंत्र, धेकली तंत्र। Nowadays, sprinklers and drip irrigation methods are used to irrigate modern farms. आजकल फव्वारे और बूंद 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 करके पानी दिए जाने वाले तरीके फसल को पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। Let's have a small formative test. Irrigation is essential to make the seeds germinate. Choose the correct statement to support this. Dry seeds do not germinate. Nutrients are insoluble in water. Wet seeds do not germinate. इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ड्राई सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। जब भी हमें स्टोर करके रखना होता है तब भी हम बीजों को ड्राई करके रखते हैं। जैसे ही उन्हें मॉइस्चर मिलती है वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे घर में आपने कभी ना कभी चनों को जर्मिनेट होते हुए ज़रूर देखा होगा। इन फार्मिंग विच प्रैक्टिस फॉलोज मैन्योरिंग। मैन्योरिंग के बाद क्या आता है? इरिगेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा।